Hello friends, this is Ashwini Sadnarjun Dubedi, Assistant Professor, Law College Dehradun, Uttaranchal University. Friends, today we are going to discuss controls over the delegated legislations. In our last lecture, we have discussed about delegated legislation. We have discussed what is delegation, what is delegated legislation, need, and constitutionality of DL. Today we will discuss controls over the DL. There are three types of controls over the delegated legislation: judicial control, legislative control, and procedure control. Friends, judicial control means doctrine of ultra vires, and doctrine of ultra vires means whenever a power is transferred to a person, and if that person exceed that power, then it is called ultra vires. Under judicial control, ultra vires may be of two types: substantive ultra vires and procedural ultra vires. Friend, substantive ultra vires means we have discussed that legislature is not allowed to delegate its whole power to make the law, or we can say legislature is not allowed to create a parallel authority to make the law. Legislature may only delegate ancillary powers with skeleton law, or there must be a parent act. Under this parent act, all laws should be made by the executive. And the most important thing is that the parent act must be constitutional. If parent act is unconstitutional, then all the laws made by the executive will be unconstitutional. Second, the legislature is not allowed to delegate its whole power to make the law. If legislature delegates the essential functions to executive to make the law, it will be substantive ultra vires. Now, delegated legislation must be consistent with constitution, parent act, and other laws. If there is any inconsistency of DL with constitution, parent act, and other general laws, then it will be null and void. Delegated legislation should not be malified grounds, unreasonable, and arbitrary. If the delegated legislation is on malified ground, if it is unreasonable, if it is arbitrary, then it is null and void. The subdelegation is not allowed without the express permission of the legislature. Subdelegation means if a power has been transferred to a person, and if that person transfers that power to another person, it is called subdelegation. Subdelegation is only allowed if legislature expressly permits it. And if there is any subdelegation without the express permission of legislature, it will be null and void. Friends, we all are aware that judicial review is the basic structure of constitution, and judiciary has power to review whether the law is made by the legislature or whether the law is made by the executive. And if any delegated legislation excludes the judiciary to review that law, then that will be null and void. If delegated legislation operates retrospectively, it will be null and void. So friends, these are the grounds which makes the
DL null and void, and judiciary may review on those grounds, and judiciary may declare the law void on these grounds. Second, procedural ultra virus means a procedure has been provided to make the law by the executive. If there is not fulfillment of those procedures, it will be procedural ultra virus, and judiciary may declared null and void if there is not fulfillment of procedure. Procedure means publication and consultation. Publication may be prior to law and after to law. Consultation means consultation with officials, consultation with statutory bodies, and consultation with advisory bodies. So all the procedures must be followed. If there is any non-fulfillment of these procedures, the law will be null and void according to procedural ultra virus. So this is the control over delegated legislation by the judiciary. Second control is by the legislature or parliamentary control. Friends, in the parliamentary form of government, legislature reflects the will of the people. So legislature is considered as a custodian of the rights and interest of the people. Parliament has three types control. First one is general control, second one is financial control, and third one is by many committees. First one is general control. General control by the questions, motions, resolutions, and financial control by the budget, by audit, and committees. There are many committees which control the delegated legislation. There are two types of scrutiny committees, the Lok Sabha committee and the Rajya Sabha committee. There is also concept of laying bill on the table. So these are the controls over the delegated legislation: judicial control, legislative or parliamentary control, and procedural control. तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये आज कंप्लीट होता है. मैं पूरे टॉपिक को इन नटसेल आपको फिर से बताता हूँ. सबसे पहली बात कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है. देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के दो मीनिंग हैं. एक, जब लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देता है तो उस पावर को हम क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं. दूसरा, उस पावर को यूज करके अगर एग्जीक्यूटिव जो भी लॉ रूल बनाती है तो वो जो आउटकम है उस पावर का, वो भी क्या कहलाता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है. अब हमें आज बात करनी है कंट्रोल की. देखिए, कंट्रोल करना क्यों पड़ रहा है? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. अब ये एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग पावर हमने इसलिए दी है जिससे कि जैसे जैसे जो हमारा स्टेट है ये लेजिस्फेयर से वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हुआ. जब कन्वर्ट हुआ तो लेजिस्फेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी होती है टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ दैट स्टेट, लेकिन वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्रोटेक्ट भी करना और उसके वेलफेयर के लिए कई स्कीम्स बनाना. ये देखना कि उनको जो है वो फूड मिल रहा है, प्रॉपर हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है. ये सब चीज़ें भी वेलफेयर स्टेट में स्टेट की ड्यूटी हो जाती है. तो जैसे जैसे इनकी ड्यूटी इंक्रीज हुई तो जो ये अथॉरिटीज़ थी इनके इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया. अब इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो इनको काम करना पड़ेगा. उस काम को करने के लिए इन्हें आपको पावर देनी पड़ेगी, लेकिन वो पावर का मिसयूज ना हो जाए उसके लिए कुछ कंट्रोल भी जरूरी है. क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पूरी पावर जो है लॉ मेकिंग नहीं दे सकती है. जो इसेंशियल पावर है उसकी वो नहीं दे सकती है, केवल एंसिलरी पावर जो है वो डेलीगेट कर सकती है. अब कंट्रोल करने के लिए हमने आपको बताया कि तीन तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. एक तो जुडिशियल कंट्रोल होता है, एक आपका पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है, और एक प्रोसीजरल कंट्रोल होता है. जुडिशियल कंट्रोल जो होता है, आपको पता है कि जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर है.
चाहे वो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया हो चाहे एग्जीक्यूटिव ने बनाया हो, जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। अब जुडिशियल रिव्यू जो जुडिशरी करेगी वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे करती है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है कि आपका जो अधिकार था, आपको जो पावर दी गई थी, आप उस पावर को क्या कर गए, एक्सीड कर गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब जुडिशियल रिव्यू में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं, एक सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस होता है और एक प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस होता है। अब सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस क्या कहता है, सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस में पहली बात तो ये है कि जो आपका पेरेंट एक्ट है या स्केलेटन लॉ है। पेरेंट एक्ट क्या होता है कि जब लेजिस्लेचर पूरी पावर अपनी डेलीगेट नहीं कर सकती है, उसे एक अपना पेरेंट एक्ट बनाना होगा और एग्जीक्यूटिव उस पेरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। अब जो पेरेंट एक्ट है, अगर मान लीजिए पेरेंट एक्ट खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो उस पेरेंट एक्ट से जितने भी लॉज बनेंगे वो अपने आप सब क्या हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर पेरेंट एक्ट में जो लेजिस्लेचर है उसने अपनी इसेंशियल फंक्शंस डेलीगेट कर दी हों तब भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा या इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर अपनी जो इसेंशियल फंक्शंस है वो डेलीगेट नहीं कर सकती है। पहली चीज, पेरेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर हो गया तो इनवैलिड है। अगर लेजिस्लेचर ने इसेंशियल फंक्शंस डेलीगेट कर दिए तब भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। डीएल, अगर डीएल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तब भी इनवैलिड। अगर डीएल इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पेरेंट एक्ट के साथ या किसी भी लॉ के साथ, सब क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अगर डीएल आर्बिट्रेरी है, मिलाफाइड ग्राउंड पे है या अनरीजनेबल है, सब क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीएल का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई डीएल ऑपरेट्स करता है रिट्रोस्पेक्टिवली वो भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सब डेलीगेशन, सब डेलीगेशन मतलब होता है कि हमने अगर कोई पावर किसी को डेलीगेट की है वो फर्दर किसी को डेलीगेट कर दे। हमने ए से कहा कि एक गिलास पानी ले आओ, ए ने बी से कहा ले आओ, बी सी से कहता है, सी डी से कहता है, डी से कहता है, तब तक हम खुद उठ के अपना पानी पी लेते हैं। ये क्या होता है, सब डेलीगेशन होता है। तो यहाँ लॉ में ये सब डेलीगेशन अलाउड तो है, लेकिन केवल तब जब जो डेलीगेटिव अथॉरिटी है, जो लेजिस्लेचर है, जो डेलीगेट कर रही है, वो खुद इस चीज़ की एक्सप्रेस परमिशन दे दे तब। अब विदाउट एक्सप्रेस परमिशन अगर कोई सब डेलीगेशन करता है तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिन पे सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस होता है। दूसरा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है, एक इस तरीके का प्रोसीजर दिया गया है जो डेलीगेशन को कंट्रोल करता है, जैसे पब्लिकेशन और कंसल्टेशन। अब आपको पता है लॉ में एक मैक्सिम होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज, कि अगर लॉ की इग्नोरेंस है तो वो एक्सक्यूज नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी से कुछ कहा, उसे आ गया गुस्सा उठा गया, उसने क्या किया, एक पत्थर उठा के उसके सर पे मार दिया और वो आदमी मर गया। पुलिस आती है, उससे कहती है ये तुमने क्या किया, कहता भाई हाँ इन्होंने हमसे कहा, हमें गुस्सा आ गया, हमने पत्थर मार दिया। पुलिस का तो सर फट गया। बोले हाँ हमें भी दिख रहा है इसका सर फट गया है। बोले आपको पता है ये जो है वो आपने मर्डर किया है और आईपीसी के 302 में इसके लिए पनिशमेंट है। तो अब ये बंदा कहेगा अरे हमें तो भाई ये बात पता ही नहीं थी, चलो सॉरी आगे से ध्यान रखेंगे, अच्छा क्या आपने बता दिया, आगे हम ऐसे किसी के पत्थर नहीं मारेंगे जिससे उसका सर फटे। तो क्या ये अलाउ किया जाएगा, नहीं अलाउ किया जाएगा, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज। कि अगर आप कहते हैं कि हमें लॉ नहीं पता तो आपका ये एक्सक्यूज माना नहीं जाएगा। लेकिन जब एक तरफ आपकी ड्यूटी है कि आपको लॉ पता हो, तो आपका ये राइट भी है कि ऐसी सुविधा दी जाए जिससे कि आपको लॉ पता हो, लॉ का पब्लिकेशन होना चाहिए। अब पहले तो इंग्लैंड में जनरली देखिए क्या होता है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो वो क्या करते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं उसको। और कंसल्ट किससे करते हैं, जो इंटरेस्ट है जिनका। जैसे अगर उन्हें मान लीजिए लॉयर्स के लिए कोई लॉ बनाना है तो वो लॉयर से ही पूछ लेंगे कि वी आर गोइंग टू मेक सच लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ लॉयर्स। आप बताइए आपके वेलफेयर के लिए क्या क्या लॉज हो सकते हैं। तो देखिए अगर किसी के लिए लॉ बनना है तो उसका वेलफेयर किसमें, उससे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई लॉ बनना है तो स्टूडेंट्स क्या क्या चाहते हैं ये स्टूडेंट से आप पूछ लो, ज़्यादा अच्छा वो बताएंगे। अब उनसे पूछने के बाद एक लॉ बना दिया जाता है, दोबारा उन्हें बताया जाता है कि भाई ये लॉ बनाया, अगर अब भी कोई चेंजेस आप चाहो तो वो बता दो। तो कंसल्टेशन होता है।
और इस चीज़ का कंसल्टेशन कैसे होगा, पब्लिकेशन क्या होगा, एक पहले आप पब्लिश करेंगे, जब लॉ बन जाएगा तब आप फाइनल उसको पब्लिश कर देंगे। तो एक तो पब्लिकेशन जरूरी होता है और कंसल्टेशन जरूरी होता है। अब कंसल्टेशन होगा किससे, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर लो, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनसे आप कंसल्ट करो, और जो आपके मेंबर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। एडवाइजरी बोर्ड अगर आपने बनाया है, एडवाइजरी बोर्ड से आप कंसल्ट कीजिए। तो ये होते हैं। अब जो आपका ये हम प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस पढ़ रहे हैं, यही प्रोसीजरल कंट्रोल होता है जो हमें पढ़ना है। दूसरा लास्ट कंट्रोल आपका है लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब देखिए, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो कस्टोडियन हो जाता है किसका, पीपल के इंटरेस्ट का, क्योंकि वो उन्हीं को रिफ्लेक्ट्स होती है, उनकी इंटरेस्ट उनको रिप्रेजेंट करता है। अब जो लेजिस्लेचर है इसके ये कई तरीके से डीएल पे कंट्रोल करता है। जैसे एक तो हम जनरल कंट्रोल की बात कर लें, तो जनरल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये कई क्वेश्चंस आपको पता है, 0R होता है, क्वेश्चन आर होता है, तो कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता है कि कोई भी एक्ट तब बनता है, पहले तो बिल आता है, जब बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाए, ठीक है, और आपको पता है वो किस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। उसको पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट अपनी उस पर कंसेंट दे देता है तब वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। तो आपको पता है किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए कितना होगा, सब चीज़ें गुजरती हैं एक प्रोसेस से। तो एक तो जैसे क्वेश्चंस हो गए, मोशन आते हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन आते हैं, कंसल्ट करते हैं, ये चीज़ें हो गई। दूसरा होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव को अगर कोई चीज़ दे भी दी गई है तो एग्जीक्यूटिव बनाएगी और उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, बजट से, और बजट कौन अप्रूव करेगा, लेजिस्लेचर। ये कंट्रोल होता है। और ऑडिट होता है, अब जो भी खर्चे हो गए तो कैग जो है वो ऑडिट करेगी कितना आपका क्या खर्चा है, ठीक है। इसके अलावा कमेटी होती हैं, कई कमेटी आपने पढ़ रखी है, और ऑडिट कमेटी है, कैग हो गई है, या ये आपकी लोकसभा कमेटी और राज्यसभा कमेटी होती है, ये स्क्रूटनी कमेटी होती हैं। जो भी चीज़ें बनी है उसकी ये बाद में स्क्रूटनी कर सकती हैं। लेइंग बिल ऑन द टेबल, ये भी है तरीका कि जब भी कोई बिल आता है तो पहले वो टेबल पे लाया जाता है, सब लोग उस पर अपना डिस्कशन करते हैं। तो ये सब तरीके हैं कंट्रोल करने के। तो हमने पूरे इन 2 वीडियोस में आप समझ सकते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी संवैधानिकता क्या है, क्या चीज़ें डेलीगेट की जा सकती हैं, क्या नहीं की जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है इंडिया में, इस पर कंट्रोल करना है तो वो कैसे करना है। एक तो जुडिशियल कंट्रोल हो गया, दूसरा प्रोसीजरल हो गया, तीसरा लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हुआ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कई टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप बाकी टॉपिक देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका टैप करके लिंक को बाकी सब देख सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप टाइम पे देख पाए। अब फ्रेंड्स, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा 10-5 दिन में 10-15 दिन जो भी लगेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जुडिशरी के हिसाब से मैं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करूँगा। वो लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि फिर एक एक टॉपिक लेके पूरा हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए, और देखने के साथ साथ किसी भी बुक, किसी भी नोट्स, कहीं से भी एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, और फिर इसको क्या कीजिए, जैसे ये हमने बनाया है शॉर्ट में, ऐसे आप अपना सिनॉप्सिस बना के रख लीजिए। देखिए, ये टॉपिक आपको बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।